Let's continue rotational kinematics. मैंने जो समझा दिया था, this is any body free to move on the plane of board. यह कोई बॉडी है जो बोर्ड के प्लेन पर फ्रीली मूव कर सकती है. इस बॉडी को इस पॉइंट O के अबाउट फिक्स कर दिया है. This point O is fixed. Now this body is free to rotate on the plane of board. यह बॉडी बोर्ड के प्लेन पर रोटेट कर सकती है अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू बोर्ड. बोर्ड के परपेंडिकुलर इस एक्सेस से पास करते हुए बॉडी रोटेट कर सकती है. नाउ दिस इज एनी पार्टिकल P एट अ रेडियस वेक्टर ऑफ R. यह बॉडी रोटेट करती है. यह बॉडी कुछ इस तरह से रोटेट कर जाती है और नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P. द न्यू पोजीशन इज Q. Q is the new position and this angle is d theta. And this is displacement dl. हमने यह बात बता दी थी that this d theta and dl can always be related like this. This is a vector relationship. dl is equal to d theta cross R, and this is a scalar relationship. dl is equal to d theta into R. यह स्केलर रिलेशनशिप लिख लिया था, यह वेक्टर रिलेशनशिप लिख लिया था. नाउ सपोज दिस इवेंट टुक प्लेस इन dt टाइम. यह इवेंट dt टाइम में हुआ है. dt टाइम में यह बॉडी d थीटा से रोटेट हुई है और dt टाइम में यह पार्टिकल dl से डिस्प्लेस हुआ. देन वी कंसेप्चुअलाइज dl by dt. dl is termed as linear displacement. dl by dt would be called rate of change of linear displacement. This rate of change of linear displacement we denote it by v. We call it linear velocity. हम इसे लीनियर वेलोसिटी कहेंगे और वी ऑल्सो कॉल इट टेंजेंशियल वेलोसिटी. We used to say if the particle get displaced by dl during time dt, it means the particle have got some velocity. It's instantaneous linear velocity or instantaneous tangential velocity, and this velocity vector would be always collinear with dl vector. यह जो velocity vector होगा, this would be collinear with dl vector. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. Similarly, the particle gets rotated by d theta angle during time dt. यह पार्टिकल dt टाइम में d theta एंगल से रोटेट हुआ है. We used to conceptualize rate of change of angular displacement d theta by dt. We denote it by omega vector. We call it angular velocity vector. Angular velocity vector. Its magnitude would be d theta by dt. Whatever is the magnitude of d theta, whatever is the magnitude of dt, d theta by dt would be magnitude of
angular velocity, while its direction. Now, the angular velocity have got its direction always along the axis of rotation. Angular velocity भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हमेशा along the axis of rotation होता है. Means this angular velocity would be either outward the board or into the board. Once again, what is the exact direction? Outward the board or into the board? That is given by right hand thumb rule. हम right hand thumb rule से angular velocity vector determine करते हैं. We rotate our finger in the direction of rotation. Rotate fingers of your right hand in the direction of rotation. जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाइए. Thumb would give the direction of angular velocity. थंब से आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी. In fact, angular velocity is also collinear with angular displacement vector. Angular velocity vector भी angular displacement vector के collinear होएगा. हम कहते हैं बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, then angular velocity is directed outward the board. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाली बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड द बोर्ड. यदि यह बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती, इन दैट केस एंगुलर वेलोसिटी वुड बी इनटू द बोर्ड. हम कहते हैं जरा अपने ऊपर घूमते हुए फैन को देखिए. उस फैन के लिए एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा जरा सोचिए. फैन जो ऊपर घूम रहा है वहां आपको इस तरह से घूमता हुआ दिखेगा. सीधे हाथ की उंगलियों को फैन के रोटेशन के डायरेक्शन में घुमाइए. सीधे हाथ की उंगलियों को फैन के रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाइए. You will find your thumb would be facing vertically downward direction. It means the angular velocity vector of fan is in vertical downward direction. जरा ध्यान से देखिए, सीधे हाथ की उंगलियों को अपने पंखे की डायरेक्शन में उसकी जो विंग्स घूम रही है उस डायरेक्शन में घुमा के देखिए. आपको आपके सीधे हाथ का अंगूठा नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा. Means the angular velocity vector of fan is always in vertically downward direction. Once again, radius vector is along the radius of the particle. Its magnitude is equal to distance. Its direction is along its direction. We may conceptualize linear velocity, angular velocity for any rotating body. किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए हम यह लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं. नाउ वी कैन ऑलवेज रिलेट देम. हम इस इक्वेशन को dt से डिवाइड कर दें. dl बाय dt इज इक्वल टू d थीटा बाय dt इंटू r. dl बाय dt की जगह हम वेलोसिटी लिख दें. वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा r. We had already studied this relationship in circular motion. सर्कुलर मोशन में हमने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को पढ़ रखा है, सीख रखा है. बट दिस इज स्केलर रिलेशनशिप. ये तो स्केलर रिलेशनशिप हुआ. दिस इज स्केलर रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेक्टर क्वांटिटीज. v is also a vector quantity, omega is also a vector quantity and r is also a vector quantity. इन तीनों वेक्टर क्वांटिटीज में एक वेक्टर रिलेशनशिप अवश्य होना चाहिए. हमें उस वेक्टर रिलेशनशिप की आवश्यकता पड़ेगी. सर्कुलर मोशन में हमें कभी भी वेक्टर रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर इस जगह पर तो हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं. रोटेशनल काइनेमेटिक्स में वेक्टर रिलेशनशिप लिखना ही पड़ेगा. And in order to understand that exact vector relationship, मैं इस इक्वेशन को dt से डिवाइड करता हूं. dl by dt is equal to
d theta cross r by dt और dl by dt is equal to d theta by dt cross r. dl by dt is velocity, d theta by dt is omega cross r. We used to say this is the exact vector relationship between the three vector quantities: velocity vector, angular velocity vector and radius vector can always be related by this vector relationship. इस वेक्टर रिलेशनशिप से हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं. लेट्स चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन. हम इस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करते हैं. हम अच्छी तरह से जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर would be equal to angular velocity vector into radius vector. Now what is the angle between them? ध्यान रहे, angular velocity is along the axis of rotation. Radius vector always lie on the plane of rotation. Angular velocity is always perpendicular to radius vector. Angular velocity vector is always perpendicular to radius vector. The angle between them would be always equal to 90 degree. अब जरा देखिए, V is equal to omega r. स्केलर रिलेशनशिप तो हमें दिखता ही है. V equal to omega r. V equal to omega r. Sin theta की वैल्यू sin 90. There is 1. Let's check n cap. n cap की डायरेक्शन देखिए. जो n cap की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होना चाहिए. n cap की डायरेक्शन समझने के लिए हमारे सीधे हाथ की उंगलियों को हमें ओमेगा वेक्टर से रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाना होगा. जब सीधे हाथ की उंगलियों को हम ओमेगा वेक्टर से रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारे अंगूठे से हमें वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोर्ड, लाइक दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. यह रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है. ये एंगुलर वेलोसिटी है और यह रेडियस वेक्टर. वी रोटेट fingers of your right hand from omega vector to radius vector and this thumb would give the direction of velocity. सचमुच में पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जब हमने ओमेगा से रेडियस के डायरेक्शन में घुमाया तो अंगूठा भी उसी डायरेक्शन में दिख रहा है. हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू एन कैप. जो एन कैप का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है. आई सिंपली मीन टू से दैट दिस इक्वेशन रियली होल्ड. यह इक्वेशन सचमुच में होल्ड करेगी. हियर वेलोसिटी इज गिवन इन, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन इन meters per second and angular velocity vector is always given in radians per second. And this radius is given in meters. इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, इसी इक्वेशन को dt से डिवाइड करके हमने एक नई इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है. नए दो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करे, लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड अनदर पैरामीटर एंगुलर वेलोसिटी. स्केलर रिलेशनशिप हम ऑलरेडी जानते थे, हमने वेक्टर रिलेशनशिप लिख दिया. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
how do you differentiate them? What do you mean by circular motion? And what do you mean by uniform circular motion? We used to say, if a particle is moving along circular path, the motion of particle is said to be circular motion. उस पार्टिकल की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. That motion may be with constant velocity or it may be with variable velocity. The speed of particle may be increasing, it may be decreasing. यह एक सर्कुलर पाथ है. इस सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल घूम रहा है. पार्टिकल की इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे. सर्कुलर मोशन किसी भी तरह से हो सकती है. सर्कुलर मोशन करते समय पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड वेरिएबल हो सकती है, वह स्पीड बढ़ती हुई हो सकती है, वह स्पीड घटती हुई हो सकती है. अ फैन ऑलवेज एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन. Any particle on the fan always execute circular motion. उसको आप स्विच ऑन करोगे और उसकी वेलोसिटी बढ़ती होगी, तब भी वह सर्कुलर मोशन है. स्विच ऑफ कर दोगे और उसकी वेलोसिटी घटती होगी, तब भी वह सर्कुलर मोशन है. और लंबे समय से वह फैन ऑन है और उसकी वेलोसिटी पूरी उसकी एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है. किसी भी पार्टिकल की लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट है, फिक्स है, वह स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तब भी वह सर्कुलर मोशन. While a circular motion is termed as uniform circular motion. हम मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने लगते हैं यदि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल मेंटेन्स इट्स कांस्टेंट स्पीड. The speed of particle is neither increasing nor decreasing. The tangential velocity always remains a constant. In that case, the motion is termed as a uniform circular motion. अब मैं एक कंसेप्ट, एक आर्टिकल बताता हूं. ऑल्दो मैं उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर समझाऊंगा, बट आई विल जनरलाइज इट टू एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. I'll generalize it for non-uniform circular motion as well. देखिए, we have got a particle moving on this circular path. We have got a uniform circular motion of any particle P, and at any instant this is the position of the particle. किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की यह पोजीशन है. द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन. द पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. दिस वेक्टर denotes the velocity of particle. We call it initial velocity vi. This vector denotes velocity of particle both in magnitude as well as in direction. I mean to say, at this instant the direction of arrow would be the direction of velocity, and the length of arrow is directly proportional to the velocity. जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतना ही बड़ा एरो बनाया जा रहा है. अब आफ्टर दिस इंस्टेंट, आफ्टर dt टाइम, आफ्टर dt टाइम, यह पार्टिकल इस पॉइंट Q पर आ जाता है.
यह पार्टिकल इस पॉइंट Q पर आ जाता है। dt टाइम में यह पार्टिकल d थीटा एंगल ट्रेवल कर लेता है। Although this d theta angle is very small, it's negligible, it's differential, it's infinitesimal, it's not possible to measure it. मगर यदि मैंने फिगर में बहुत छोटा दिखा दिया तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिगर में मैंने फाइनाइट एंगल दिखाया हुआ है। ट्राई टू इमेजिन कि यह स्मॉल एंगल है, नेग्लिजिबल एंगल है। इस पॉइंट Q पर आकर दिस एरो डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वी कॉल इट फाइनल वेलोसिटी। After time dt, this arrow denotes the velocity of particle at position Q, both in magnitude as well as in direction. I mean to say the direction of arrow would be the direction of velocity at this position, and the length of arrow would suggest us the magnitude of velocity. It's directly proportional to magnitude of velocity. Larger the magnitude is, larger would be the length of arrow. जितना बड़ा आपने एरो बनाया है उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब कुछ सवाल। पॉइंट P पर पार्टिकल की स्पीड और पॉइंट P पर पार्टिकल की, पॉइंट Q पर पार्टिकल की स्पीड, यह अलग अलग है या बराबर है? विल से सिंस इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने पहले ही कंडीशन बोल दी इस जगह पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही हम बात को पहले समझ रहे हैं और फिर उसको जनरलाइज हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कर देंगे। सिंस वी हैड ऑलरेडी एज्यूम्ड द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेंस द स्पीड ऑफ पार्टिकल at point P would be equal to speed of particle at point Q. I mean to say magnitude of velocity at point P would be equal to magnitude of velocity at point Q. The length of arrow drawn at point P would be equal to length of arrow drawn at point Q. Up. Does it mean that velocity at point P is same as velocity at point Q? Does it mean that velocity at point P is equal to velocity at point Q? No, never. We can never conclude this. Velocity is a vector quantity. It's represented both in magnitude as well as in direction. सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो जाने से वेलोसिटी सेम नहीं कहलाएगी, डायरेक्शन अलग अलग है। पॉइंट P पर वेलोसिटी का डायरेक्शन यह है, पॉइंट Q पर वेलोसिटी का डायरेक्शन यह है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है। इफ वी हैव गॉट डिफरेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q, देन देयर मस्ट बी सम चेंज इन वेलोसिटी। जब यह पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q तक गया है तो उसकी वेलोसिटी में निश्चित कुछ न कुछ चेंज आएगा। What is that change in velocity? I wish to determine the change in velocity of the particle during this event, both in magnitude as well as in direction. जब यह पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q तक गया है तो उसका क्या एक्सीलरेशन हुआ है, उस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, मैं यह समझना चाहता हूं। और मैं तभी समझ पाऊंगा जब मैं उसकी चेंज इन वेलोसिटी डिटरमाइन करूं। अब देखिए, सबसे पहली बात, वेक्टर्स के लिए एक रूल है, वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड ऑन द प्लेन एंड व्हाइल ट्रांसलेटिंग वी नीड टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन सेम एंड द लेंथ सेम। वेक्टर को प्लेन में कहीं पर भी ट्रांसलेट करा जा सकता है,
ट्रांसलेट करते समय आपको उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना होगा। इस वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करके इधर बना सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेक्टर को मैंने ट्रांसलेट इधर कर दिया। वेक्टर को इधर से इधर ट्रांसलेट करते समय सिर्फ दो बात का ध्यान रखा, एक तो इनकी लंबाई सेम रहे, दूसरा इनका डायरेक्शन सेम रहे। वेक्टर के साथ यह ऑपरेशन हमेशा करा जा सकता है। मैं वही ऑपरेशन इधर करने जा रहा हूं। मैं इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर को भी ट्रांसलेट करूंगा, मैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को भी ट्रांसलेट करूंगा। मेरी ट्रांसलेट करने की वजह क्या है? मैं कोई सा भी वेक्टर ऑपरेशन तभी लगा पाता हूं जब दोनों वेक्टर की या तो टेल एक पॉइंट पर हो या फिर हेड एक पॉइंट पर हो, या टेल और हेड एक पॉइंट पर मिले हुए। मैंने वेक्टर एडिशन भी जब सीखा था तो वेक्टर एडिशन के लिए मुझे लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाने के लिए या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने के लिए दोनों वेक्टर्स को एक पॉइंट पर लाना होता था, तभी मैं वेक्टर एडिशन कर पाता था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करने के लिए दोनों वेक्टर की टेल एक पॉइंट पर लाता था, और लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करने के लिए एक वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की हेड एक पॉइंट पर लाता था, तब जाके मैं लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर एडिशन कर पाता था। इसी तरह से वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी वेक्टर्स की टेल एक पॉइंट पर होनी चाहिए। मैंने जब डॉट प्रोडक्ट सीखा तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए भी दोनों वेक्टर्स को एक पॉइंट पर लाना जरूरी है, तभी आप उनके बीच का एंगल देख पाते हो। तभी आप, जैसे वर्क निकालने के लिए मैंने एफ डॉट एस करा तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक ही पॉइंट पर रख के देखता था, तब जाके मैं उनके बीच का एंगल मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा लिखने के लिए मुझको एंगल देखना होता। इसी तरह से अब जब इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट देख रहा हूं तब भी मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए होता है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल तो तभी मिल पाएगा जब दोनों वेक्टर्स की टेल एक ही पॉइंट पर हो। मैं इन दोनों वेक्टर्स की इनिशियल वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर लाना चाहता हूं, और उसे एक पॉइंट पर लाने के लिए मैं वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर रहा हूं। जैसे इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को मैं हल्का सा पीछे खींच देता हूं, और हल्का सा पीछे खींचकर मैं इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बना देता हूं। दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू हियर। यह इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इसी तरह से अब मैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनाता हूं। सॉरी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को तो मैंने पीछे खींच दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस पार्टिकल का इस तरह से मैंने ड्रॉ करा है, इसको मैं थोड़ा आगे खींच दूंगा। इस तरह से मैंने फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को आगे खींच दिया। फायदा यह हुआ है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट पर आ चुके हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन भी संभव है, सब्सट्रैक्शन भी संभव है, और मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, क्रॉस प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। वेक्टर ऑपरेशन करने के लिए यह टास्क, यह काम तो आपको सबसे पहले करना ही पड़ेगा। अब मैं इस जगह पर यह एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, एक एरो इस तरह से ड्रॉ करता हूं, इसे वेक्टर के रूप में दिखाता हूं। लेट अस कॉल इट अ वेक्टर एक्स। हम इसे वेक्टर एक्स कहते हैं।